کا تیسرا بڑا شہر پی ایس ایل کی رونقوں سے بھی محروم۔ گزشتہ 16 سال سے زائد عرصہ سے اقبال اسٹیڈیم میں بین الاقوامی کرکٹ بھی نہ ہو سکی۔ فیصل آباد کے شائقین ضلع انتظامیہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ حکام کے عدم تعاون کی بھیڑ چڑھ گیا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، ملک کا تیسرا بڑا شہر پی ایس ایل کی رونقوں سے محروم ہو گیا۔ گزشتہ 16 سال سے زائد عرصے سے اقبال اسٹیڈیم میں بین الاقوامی کرکٹ نہ ہو سکی۔ فیصل آباد کے شائقین ضلع انتظامیہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ حکام کے عدم تعاون کی بھیڑ چڑھ گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملک کا تیسرا بڑا شہر فیصل آباد پی ایس ایل کی رونقوں سے محروم ہے۔ گزشتہ 16 سال سے زائد عرصہ ہو گیا مگر اقبال اسٹیڈیم میں بین الاقوامی اور کرکٹ میچ نہ ہو سکے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر۔ ظفر صاحب بتائیے گا کہ نہ پی ایس ایل میچز ہو رہے ہیں نہ انٹرنیشنل کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، فیصل آباد کو آخر نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی، بہت ہی ریلیونٹ کویسچن ہے۔ 92 لاکھ سے زائد کی آبادی کا ضلع، سب سے زیادہ ریونیو دینے والا ضلع پنجاب کا، پاکستان کا تیسرا بڑا شہر، شائقین کرکٹ کی بہت بڑی تعداد رکھنے والا ضلع، لیکن ایک خوبصورت اسٹیڈیم اقبال اسٹیڈیم کے نام سے جو یہاں موجود ہے، اس میں اس وقت کرکٹ میچ ہونے کی بجائے یہاں کالجوں کی، اسکولوں کی تقریبات ہوتی ہیں، یا پھر میوزک نائٹس ہو سکتی ہیں، یا پھر دیگر مقامی جو کلبز ہیں وہی میچ کھیل سکتے ہیں۔ نہ یہاں انٹرنیشنل کرکٹ میچز ہوتے ہیں اور نہ ہی یہاں پی ایس ایل کے میچ ہو رہے ہیں۔ اس وقت پوری قوم پی ایس ایل کے میچوں پہ نظریں جمائے بیٹھی ہوئی ہے، دیکھتی ہے۔ بہت بڑی لاکھوں کی تعداد میں یہاں شائقین ہیں، مگر وہ اپنی سرزمین پہ، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں جو بہت بڑا خوبصورت اسٹیڈیم اقبال اسٹیڈیم کے نام سے موجود ہے، وہاں کھلاڑیوں کو اپنے درمیان نہیں دیکھ سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ فیصل آباد جیسے بڑے شہر کو، جو ایک پاکستان کا صنعتی اور سیاسی لحاظ سے بہت ہی انتہائی اہمیت کا حامل شہر ہے، ایسا کیوں ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا ہے؟ اور 2008 کے بعد کوئی انٹرنیشنل میچ اس اسٹیڈیم میں نہیں ہو سکا، اور جو آخری میچ ہوا تھا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، ون ڈے میچ تھا، 2008 میں کھیلا گیا، جو پاکستان نے جیتا تھا۔ اس سے پہلے انڈیا کے ساتھ 2004 میں ایک ٹیسٹ میچ ہوا، وہ ڈرا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد 2008 کے بعد کوئی ایک بھی میچ یہاں نیشنل یا انٹرنیشنل میچ نہیں ہو سکا۔ اور یہ 1965 میں اگر ہم اس کا ذکر کریں کہ یہ جو اسٹیڈیم جو آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو سکرین پر، بہت خوبصورت اس کا گراؤنڈ ہے، بہت زبردست اس کی جو پویلین اور اس کی جو انکلوجرز ہیں، اس کی اگرچہ بہت کچھ ہونے والا ہے، لیکن بڑا اپنے دور کا بڑا خوبصورت اسٹیڈیم ہے، جس کو اس وقت ضرورت ہے کہ یہاں میچز ہوں اور آباد ہو اور شہری یہاں شائقین کرکٹ یہاں میچ دیکھ سکیں، لیکن ایسا ہوتا ابھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ضلع انتظامیہ فیصل آباد کی جو ہے، آج کی نہیں بہت عرصے سے جو بھی ضلع انتظامیہ رہی، اس کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ایک تنازع چلا آ رہا ہے، اور یہ میچز اسی تنازع کی وجہ سے نہیں ہو رہے۔ یہ تنازع ہے کیا؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں جو انتظامی کنٹرول مانگتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے، کہ جس طرح قذافی اسٹیڈیم لاہور کا، نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا، اور جو قاسم باغ ملتان میں جو اسٹیڈیم ہے، اور پنڈی کا جو اسٹیڈیم ہے، جس طرح اس کا انتظامی کنٹرول پی سی بی کے پاس ہے، پی سی بی کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصل آباد اقبال اسٹیڈیم کا جو انتظامی اور مالی کنٹرول ہے وہ بھی اس کے سپرد کیا جائے، جبکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بہت سے یہاں معاملات ہیں، مالی معاملات اور انتظامی معاملات اس میں انوالوڈ ہیں، اور وہ اس کو ہر صورت اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ کئی دفعہ کوششیں ہوئیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ 22,000 کے لگ بھگ گنجائش رکھنے والا، شائقین کو بٹھانے کی گنجائش رکھنے والا اسٹیڈیم کرکٹ میچوں سے محروم ہے۔ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے یہاں کی مقامی انتظامیہ کے لیے بھی اور یہاں کی سیاسی قیادتوں کے لیے بھی۔ آخر وہ کون سا ایسا عقدہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ سیاستدان تو ناممکنات میں سے ممکنات کے راستے نکالتے ہیں، تو فیصل آباد کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے کہ وہ ابھی تک اس کا حل نہیں نکال سکی؟ کہ اتنے بڑے شہر کو جہاں دیگر بہت سے مسائل کا سامنا ہے، جو ہائی کورٹ بینچ نہیں بنا، جہاں بہت سے مسائل ہیں، وہاں ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ ایک بڑا خوبصورت اسٹیڈیم رکھنے کے باوجود ہم کرکٹ میچز اس اسٹیڈیم میں نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ اس تاریخی اسٹیڈیم کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو بہت سی یادیں، بہت سے واقعات ایسے ہیں جو اس میں دیکھے گئے اور اس سے وابستہ ہیں لوگوں کی یادیں۔ یہی وہ کرکٹ اسٹیڈیم ہے جہاں انڈین کرکٹ لیجنڈ جو سچن ٹنڈولکر تھے، ان کی جو ٹیسٹ کیریئر یا ون ڈے کے ان کے کرکٹ کے کیریئر کا آغاز اسی اسٹیڈیم سے ہوا تھا۔
इसी स्टेडियम में डेनिस लिली ने कहा था एक डेड पिच को देख के, जब कोई भी आउट नहीं हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि इधर मेरी कब्र बना दें। तो बहुत ही ज़बरदस्त और फिर एक मशहूर वाक़या भी हुआ है जो माइक गेटिंग और अंपायर शकूर राना के दरमियान किसी बात पे तनाज़ा हुआ तो अंपायर जो है वो छोड़ के पवेलियन में चले गए और 3 घंटे मैच रुका रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अच्छी और बुरी यादें भी इस स्टेडियम से वाबस्ता हैं। लेकिन मैच हैं एक ऐसी चीज़ जो यहाँ रुके हुए हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर टीम के साथ यहाँ मैचेस खेले गए, लेकिन एक मुद्दत से ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। ये इस वक्त इस पे भी बात करने के लिए केयर टेकर इकबाल स्टेडियम नवीद नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है उनके नज़दीक के मैचेस नहीं हो रहे। और दूसरा, जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जो ऐलान किया है कि फैसलाबाद में भी मैचेस हुआ करेंगे, तो क्या ऐसा मुमकिन है? नवीद साहब बताइएगा, पहले तो ये बताइए कि यहाँ स्टेडियम के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि ये 1965 के बना हुआ है, उससे बाद यहाँ पे 24 टेस्ट मैच हो चुके हैं और 12 वनडे हो चुके हैं और 2 वनडे जो अपना वर्ल्ड कप के हुए 96 में। तो ये मगर इतना जहाँ पे पब्लिक मैच देखने आती है कि इतना ज़्यादा रश होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। ना पिंडी, मुल्तान, लाहौर में इतनी आवाम नहीं आती जितनी यहाँ पे आती है। टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, तो पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जब पाकिस्तान पे बैन हुआ था क्रिकेट का, तो वहाँ फैसलाबाद की इंतजामिया ने नेशनल T20 मैच करवाया और इसकी फुटेज जो है वो ICC को गई, जिसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट बहाल हुई। तो अब जैसे ये PCB वाले मांग रहे हैं कंट्रोल, तो वो PCB ने जो मुल्तान का स्टेडियम है वो खुद बनाया हुआ है, जो अपना पिंडी का वो खुद बनाया हुआ है। ये जो फैसलाबाद स्टेडियम है ये इंतजामिया ने खुद बनाया है, जो इंतजामिया की मलकियत है, तो वो ये पंजाब गवर्नमेंट की जगह है। तो इसमें मके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है मैचों के दौरान हम सारी फिलफुल करते हैं। अभी जो डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर साहब है, उन्होंने काफ़ी सारा विजिट कर लिया, उन्होंने रेनोवेट शुरू करवा दिया ड्रेसिंग रूमों का, बॉक्स का, मीडिया गैलरी का। तो हम हर टाइम तैयार होते हैं और हमें इतनी दफ़ा उन्होंने कहा कि PSL के मैचेस होंगे। ये 9 साल हो गए हैं इसी तरह हमें वो लगा, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अभी बड़ी खुशी हुई है, वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन बन गए हैं PCB के, उन्होंने काफ़ी अंदिया दिया है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है ना वो PSL के मैचेस भी और इंटरनेशनल मैचेस भी यहाँ पे होंगे। तो उम्मीद करते हैं फैसलाबाद की आवाम के लिए भी और फैसलाबाद के प्लेयरों के लिए भी बड़ी खुशहाल बात है कि यहाँ पे मैचेस शुरू हो जाएंगे दोबारा मोहसिन नकवी की वजह से। तो जो उन्होंने बहुत बड़ा कदम है, मोहसिन नकवी साहब का बहुत बड़ा काम किया उन्होंने वज़ीर आला बन के भी, तो मैं मके उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया नवीद नज़ीर साहब आपका। आपने नवीद नज़ीर की बातें सुनी, बहुत खुश हैं कि नए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि यहाँ मैचेस हुआ करेंगे। उन्हें इत्मीनान है कि इस वादे पे भी अमल होगा और फैसलाबाद के शायकीन जो हैं एक बार फिर यहाँ क्रिकेट मैचेस देख सकेंगे। जी, एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सर आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं मुल्क का तीसरा बड़ा शहर PSL की रौनकों से महरूम है। गुज़श्ता 16 साल से जायद अरसा बीत गया, लेकिन इकबाल स्टेडियम में बैनुल अक़वामी क्रिकेट ना हो सके। फैसलाबाद के शायकीन, जिला इंतजामिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम के अदम ताउन की भीड़ चढ़ चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुज़िश्ता 16 साल से जायद का अरसा बीत गया है, इकबाल स्टेडियम में बैनुल अक़वामी क्रिकेट ना हो सकी। फैसलाबाद के शायकीन, जिला इंतजामिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम के अदम ताउन की भीड़ चढ़ा हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क का तीसरा बड़ा शहर PSL की रौनकों से महरूम है। गुज़िश्ता 16 साल से जायद का अरसा बीत गया है, इकबाल स्टेडियम में बैनुल अक़वामी क्रिकेट भी ना हो सकी। मुल्क का तीसरा बड़ा शहर PSL की रौनकों से भी महरूम। गुज़िश्ता 16 साल से ज्यादा अरसा से इकबाल स्टेडियम में बैनुल अक़वामी क्रिकेट भी ना हो सकी। फैसलाबाद के शायकीन, जिला इंतजामिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम के अदम ताउन की भीड़ चढ़ गए। PSL हो या बैनुल अक़वामी क्रिकेट, हम मेजबानी के लिए तैयार हैं। PCB को हर तरह की सहूलत फराहम करेंगे, फैसलाबाद इंतजामिया का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख कहते हैं, PCB को ऑफर करते हैं कि आएं और फैसलाबादियों के दिल जीते। PSL में फैसलाबाद की टीम की शमूलियत को भी अहम करार दिया गया। मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। इसके लिए ज़िला इंतजामिया और इकबाल स्टेडियम की जो इंतजामिया वो बिल्कुल रेडी है और हमारी बहुत इस हवाले से कोशिश है कि यहाँ पर बिल्कुल मैचेस होने चाहिए और उसमें स्टेडियम के अंदर जो अब हमारे अपने रिसोर्सेज जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं वो भी हमने उसमें स्टार्ट की हैं। उसमें लॉकर रूम्स की इम्प्रूवमेंट है, उसमें जो स्पेक्टेटर्स की जो व्यूइंग के हवाले से जो सीटिंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करने की और सीटिंग के अरेंजमेंट्स को इम्प्रूव करने की भी हम काविश उसमें कर रहे हैं। उसमें
उसमें PCB को भी हमारी तरफ से खुली इसमें एक ऑफर है कि यहाँ पे मैचेस कराए जाए और उसमें जो भी अरेंजमेंट उनको सूट करती है और जो भी उनको उसमें फैसिलिटेशन हमसे दरकार हो वो हम उनको देने को तैयार हैं उसमें। और इसके हवाले से हमने HBL और बाकी जिस तरह कमर्शियल पार्टनर्स हैं उनको भी हमने अप्रोच किया है कि वो भी स्टेडियम को जो है वो उसमें उसको उस लेवल पे लेके आए ताकि यहाँ पे मैचेस किए जा सकें। और मेरे ख्याल में ये बहुत एक ज़रूरी होगा कि फैसलाबाद चूँकि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक PSL की टीम भी बनाई जाए और इसमें मेरे ख्याल में जो लोकल यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, वो भी इसके अंदर अपना हिस्सा डाल सकते हैं और एक यहाँ पे एक PSL बनाई जा सकती है। DC फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर की गुफ्तगू आपने सुनी। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद से सुतेली मां जैसा सलूक किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी मैचेस के बाद PSL मैचेस भी नहीं हो रहे। शायकीन क्रिकेट मायूस हो गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से उम्मीदें बांध ली। इस हवाले से शायकीन का क्या कहना है, अली रजा से जानते हैं। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर लेकिन इंटरनेशनल नेशनल क्रिकेट और PSL मैचेस से महरूम, जिसमें शायकीन क्रिकेट मायूस दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि आखिर हमारे साथ सुतेली माओ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। मेरे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद है। भाईजान क्या कहेंगे PSL को और जिला इंतजामिया को? सर, सबसे पहले बात यह है कि फैसलाबाद को आज तक ऐसी अहमियत नहीं दी गई जैसे बाकी पंजाब के शहरों को दी गई है। हम मैनचेस्टर कहा जाता है, हमें एशिया का भी कहा जाता है, पाकिस्तान का भी कहा जाता है। तीसरा इकोनॉमिकल शहर है हमारा जो कंट्रीब्यूशन करता है पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए। ना इधर कंस्ट्रक्शन में और सबसे ज़्यादा क्रिकेट के लिए कुछ नहीं किया गया। 2003-04 में आखिरी दफ़ा इकबाल स्टेडियम में मैच हुआ है साउथ अफ्रीका का, उसके बाद आज तक यहाँ कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ। अब अभी भी देखेंगे इधर SPL लिखा हुआ है, ये किसी केयर टेकर को दे गया, ये टीमों जैसा हमारे ग्राउंड के साथ किया गया हुआ है। हम जहाँ चाहते हैं PSL है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, हम इस मुल्क का हिस्सा है, ये शहर हमारा मुल्क का हिस्सा है। अगर PSL के यहाँ पे मैचेस होते हैं और इंटरनेशनल टीमें आती हैं, फैसलाबाद के लोग वेलकम करेंगे? सर क्यों नहीं करेंगे वेलकम, फैसलाबाद के लोग क्यों नहीं वेलकम करेंगे बताओ सर, हम लोग उनको करेंगे। हम तो मोहसिन नकवी साहब से ये कहना चाहते हैं कि सर इस शहर को भी अपना शहर समझे। हम भी क्रिकेट के, हमने भी सईद अजमल हमारे शहर से गया हुआ है, बहुत से हमारे बिस्बा गया हुआ है हमारे शहर में। आसफ वाडा ले लें, हमारे आसफ अली हमारे शहर के लोग हैं, हमें क्यों टीमों जैसा रखा गया? बिल्कुल, बहुत से स्टार जो हैं वो पैदा किए हैं फैसलाबाद ने, लेकिन यहाँ से जो है वो क्रिकेट क्यों नहीं यहाँ पे दी जा रही? भाईजान क्या कहेंगे आप मैचेस के हवाले से? यहाँ पे PSL और इंटरनेशनल मैचेस होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जरूर होने चाहिए सिर्फ मैचेस। और दूसरी बात ये कि फैसलाबाद की टीम भी होनी चाहिए PSL में, वो भी अच्छा परफॉर्म करे। बाबर आजम हमारा स्टार है, वो इधर आए, हम उसको वेलकम करें, इंटरनेशनल स्टार्स को वेलकम करें। हम सारे प्यारे 11 की टीम से मोहसिन नकवी साहब को बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट है कि वो इधर मैचेस करवाएं, हम भरपूर उनका वेलकम करेंगे, दिखाएंगे फैसलाबाद कितना कुछ जीदार है। ये कहना है कि फैसलाबाद के लोग बताएंगे कि हम किस तरीके से जो है वो वेलकम करते हैं। अगर इंटरनेशनल मैचेस और PSL के यहाँ पे मैचेस होते तो मुतालबा किया जा रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से अपील की है कि फैसलाबाद में क्रिकेट को बहाल किया जाए और फैसलाबाद के शहरियों का ये भी कहना है कि फैसलाबाद की अपनी टीम भी होनी चाहिए। अली रजा हमें आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फेस्को मीटर्स लगवाना सार्फिन के लिए दर्द-ए-सर बन गया। शहर भर में 5000 से ज्यादा अदाशुदा डिमांड नोटिस पर मीटर न लग सके। सार्फिन सब डिवीजन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। तफसीलात अवैसली से जानेंगे। अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को में मीटर्स लगवाने के लिए सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। तीन माह से डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने के बावजूद सार्फिन को नए कनेक्शंस की सहूलत नहीं मिल रही है और इसी वजह से फैसलाबाद शहर भर में 5000 से ज्यादा घरेलू कनेक्शन के लिए अदाशुदा डिमांड नोटिस पर नए मीटर्स जो हैं अब वो नहीं लग सके हैं। हम इस वक्त फेस्को हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ, हमारे साथ सारफ हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, कब से आपने अपने मीटर के डिमांड नोटिस की फीस जमा करवाई और मीटर नहीं लगा? जी हमें आज तकरीबन 5वां माह है सर, ये हमने डिमांड नोटिस की फीस भी जमा करवा दिया, डिमांड नोटिस जमा हो गया, लेकिन हमारा मीटर नहीं लग रहा। ये 7 सब डिवीज़न है, वहाँ हम गए हैं 3-4 दफ़ा, बल्कि ज़्यादा दफ़ा जा चुके हैं। वो बात नहीं सुनते, ना मीटर लग रहा है, ना कोई बंदा सीधी बात बताता है, बस आजकल कर रहे हैं। तो हमारी ये अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि ये हमारा काम करवाएं, हमारा मीटर लगवाएं। बड़े परेशान है इस वक्त ना, प्लीज़। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर मौजूद जो सार्फिन उनका यही कहना है कि अरसा दराज से डिमांड नोटिस की फीस। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रॉयल कंसल्टेंट का यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में करियर काउंसलिंग सेशन। आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क में मैसर सुनहरी मौक़ों बारे आगाह किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में कोऑर्डिनेटर शफीकुर रहमान और कंसल्टेंट अली रजा की जानिब से लेक्चर्स दिए गए। आइए आपको यूनिवर्सिटी ऑफ जंग लिए चलते हैं। उन एजेंट के थ्रू आप अप्लाई करें।
तो फिर आपको एप्लीकेशन या टैग करवानी पड़ती है या फिर आपको किसी एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो इस वजह से सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये हो जाता है हमारी तरफ से, हमारे साथ अप्लाई करने का बेनिफिट आपको सबसे पहला ये हो जाता है कि आपको ज़्यादा हर्डल्स नहीं फेस करने पड़ते, ठीक है। और सेकेंडली जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्कॉलरशिप्स होती हैं तो एक कोटा मिलता है हर कंसल्टेंट को, हर एजेंट को, उसमें भी आपको हेल्प आउट करते हैं हम कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलनी है, अगर आप इंडिविजुअली खुद से अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी कुछ कम चार्ज करे, कुछ कम पे करे, लेकिन अगर हमारे थ्रू करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाता है, ये बेनिफिट हो जाता है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं, जिस तरह सर ने भी आपको बताया यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, प्लस सर ने की हुई थी उस रिसर्च की बेस पर यहाँ कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं, तो तब भी आप बेहतर फैसले ले सकते हैं और उससे आपकी ज़ात को भी फ़ायदा होगा, आपकी फैमिली को भी फ़ायदा होगा और अल्टीमेटली इस पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये आपको रियलाइज़ करवाना था, ये अवेयरनेस देनी थी कि आपका फ्यूचर जो है वो बहुत कीमती है आपके लिए और इस मुल्क के लिए, और इस फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, इस फ्यूचर को रोशन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक रास्ता ये है कि आप अब्रॉड जाएं और अब्रॉड जाकर डिग्री, अच्छी डिग्री जो है वो हासिल करें। बीएस करने के बाद एमफिल के लिए जाएं, पीएचडी के लिए जाएं, यूके जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, वहाँ से जाकर डिग्री हासिल करें। अब रॉयल कंसल्टेंट जो है इस हवाले से आपको कौन सी सर्विसेज जो है वो दे सकता है, वो सर्विसेज ये हैं कि सबसे पहले जो इसका प्रोसीजर होता है वो ये है कि आप का यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाए। सबसे पहले तो हमारा जो स्टूडेंट है वो नहीं जानता कि यूके की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं, या आपकी जो डिग्री है उस जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो बेटर है। तो सबसे पहले आपको ये गाइड किया जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो आपके लिए बेहतर है। फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाएगी उस यूनिवर्सिटी में और वहाँ से ऑफर लेटर जो है वो आपके मंगवा के दिया जाएगा। उस ऑफर लेटर के बाद जो भी यूनिवर्सिटी की फ़ी होगी वो आप खुद पे करेंगे, यानी कि आप इदारे को नहीं देंगे, रॉयल कंसल्टेंट को नहीं देंगे ये मेरी फ़ीस लें और आप यूनिवर्सिटी में जमा करवाएं, ऐसा नहीं है। आप वो फीस खुद यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जमा करवाएंगे, ठीक है। जब आपकी फ़ी जो है वो चली जाएगी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में तो उसके बाद एक कैश, जिसे हम कंफर्मेशन एडमिशन लेटर कहते हैं, वो आएगा और उस बेस पे फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उस लेटर की और यहाँ आपको बताएं कि अशराए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के बाद यूरिया खाद भी महंगी हो गई। यकमुश्त 1350 रुपए फी बोरी का इजाफा कर दिया गया। महंगी खाद भी नायाब, चनियोट के काश्तकार परेशान, खाद की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर बताइएगा। जी फौजी फर्टिलाइजर की जानिब से एक दफ़ा फिर से यूरिया खाद की कीमत बढ़ा दी गई है और यूरिया खाद की कीमत में 1350 रुपए का यकमुश्त इजाफा कर दिया गया है। फी बोरी पहले रेट 4000 रुपये था और अब उसका रेट बढ़कर 5350 हो गया, जिस वजह से जो काश्तकार भाई हैं वो परेशान है। उनका कहना है जो छोटा जमींदार है उसका गुजर बसर अब रोज़ बरोज़ मुश्किल से मुश्किलतर होता जा रहा है। महंगी बिजली है, महंगी खादें हैं, इस तरह उनका गुजर बसर जो है वो मुश्किल हो गया है। काश्तकार भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। खाद की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है जी, जो हमारी निगरान हुकूमत है इसने कोई हमें रिलीज़ किसी किस्म का नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। जो खाद पहले हमें 1500-2000 में मिलती थी, अभी एकदम से कीमतें बढ़ गई हैं, तकरीबन 1350 रुपये ज़्यादा हो गई है। अभी 5300-5400 में मिलती है, बल्कि वो भी मिल नहीं रही है, खाद हमें मिल नहीं रही है। और हम छोटे जो ज़िम्मेदार हैं इंतहाई परेशान हैं, धक्के खा खा के हमारे फसलें सूख रही हैं, ख़राब हो रही हैं, हमें खाद मिल ही नहीं रही। अगर मिलती भी है तो बहुत कम मिलती है। गवर्नमेंट अगर देती है तो एक बोरी देती है ज़मीन के कागज़ लेके। हम लोग जो ठेकेदार हैं, जो ठेके पे ज़मीन लेते हैं, वो कैसे कहाँ से खाद लाए, कैसे इसको फसल को जो है, अभी जो अपनी गंदम है, गंदम को खाद देना बहुत ज़रूरी है। अभी कौन सी खाद इस्तेमाल करें, यूरिया है वो मिल ही नहीं रही, अगर मिलती भी है तो 5350 की है। बताओ ये कैसे चलेगा, क्या होगा, कैसे हालात आ गए हैं। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि हुकूमत महंगी बिजली और खाद पर सब्सिडी दे, काश्तकारों को मुतालबा किया गया है। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
लैंड रिकॉर्ड सेंटर के मुलाजमीन की बैरून ममालिक के लिए छुट्टियों का तरीकाकार सख्त करने का फैसला। हेड ऑफिस ही छुट्टियां देने का मजाज होगा। पहले छुट्टी मंजूर न करवाने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तफसीलात अब्दुल रहमान से जानते हैं, बताइएगा। बात करें लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से तो आप मुलाजमीन बगैर बताए और बगैर छुट्टी अप्रूव किए जो है वो बाहर के ममालिक नहीं जा सकेंगे। एक्सपेक्शन लीव के हवाले से जो प्लान है वो मुरतब किया गया है कि यहाँ पर सिर्फ कम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी से ही बाहर जाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि लैंड रिकॉर्ड सेंटर में ये इशू सामने आ रहे थे कि यहाँ पर मुलाजमीन बगैर बताए बाहर के ममालिक में जा रहे थे और उसकी वजह से छुट्टियाँ और उन पर जो काम का बोझ है वो भी बढ़ रहा था। तो अब इस बर्डन को कम करने के लिए ये हिदायत जारी की गई है कि सिर्फ कम्पिटेंट अथॉरिटी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इसी तरह से डीजी लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ही मुलाजमीन की जो एक्सपेक्शन लीव है वो अप्रूव करेंगे और उसके बगैर अगर कोई भी इंचार्ज लैंड रिकॉर्ड सेंटर या इसके अलावा सर्विस सेंटर ऑफिशियल बगैर बताए बाहर जाता, बगैर बताए छुट्टियां करता है तो उनके खिलाफ जो तदीबी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। पीडैक के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मुलाजमीन को पाबंद किया गया नोटिफिकेशन भिजवा करके वो बगैर बताए बगैर कम्पिटेंट अथॉरिटी छुट्टी मंजूर न करवाने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में चोरी, डकैती और राहजनी के 17 मुकदमात में मुलविस गैंग गिरफ्तार। गिरोह के सरगना समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग पुलिस ने चोरी, डकैती और राहतनी के मुकदमात में मुलव्वस एक बड़े गैंग को ट्रेस किया। 5 मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया जिनसे रिकवरी भी की गई है। इसी वाले से एएसपी मोहम्मद फहीम से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि कितने मुकदमात होंगे जिनमें ये मुलव्वस थे और इस तरह समझते हैं कि इनकी गिरफ्तारी के बाद कमी भी आई है वारदातों में? हाँ, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी जो टीम है, सदर टोबा पुलिस की टीम है, उसने ये गैंग बस्ट किया है और ये गैंग कंटिन्यूसली इस एरिया में, ये जो हमारा शोरकोट का एरिया है, वरियाम वाला है और जो सदर गोजरा रोड जाता है उसमें ये जो है ना वारदातें करते थे। ये रोड रॉबरीज भी करते थे और इस तरह की जो है ना चोरी भी करते थे, इस तरह की वारदातें करते थे। तो हमने इनको स्क्वायर करके, इनकी डेटा एनालिसिस करके, जहाँ से इन्होंने रोड रॉबरियाँ की हैं, इनको हमने जो है वो टारगेट किया और हमने इनको पकड़ा है। ये गैंग जो है वो 5 बंदों पर मुश्तमिल है और इन गैंग के पकड़ने के बाद जो है ना वाजिया एक जो है हमारे 5 बंदों पर मुश्तमिल जो है ये गिरोह है जिसको गिरफ्तार किया गया है। भारी मिकदार में असलहा और नकदी भी बरामद की गई है। मुबशिर हसन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।